ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 713 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 714 ਅੰਗ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ? ਗੋਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਟਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਦੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਨੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਕਿਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜ ਚਿੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਠੰਡਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।
सतगुरु महाराज कहते ये भी नहीं कि परमात्मा मिल गया तो आनंद नहीं मिलिया। इस तरह कभी नहीं होंदा कि सूरज मिल गया चांदना कभी नहीं मिलिया। इस तरह कभी भी नहीं होंदा कि ग्लेशियर के उत्ते गए ठंडक मिली कोई नहीं। सतगुरु महाराज कहते ये दोनों इकट्ठे आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जिस दिन सतगुरु मिले उस दिन आनंद प्राप्त हो गया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते पर दुनिया के जिहड़े असीं सुख देखते हाँ ये थोड़ जिहड़े ने ये बहुता चिर रहिंदे कोई नहीं। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने शब्द सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी के विचों है। सतगुरु महाराज कहते बदल धुप लगी तो धुप लगी एकदम एक छोटा जिहा बदल का रूप जिहड़ा सी उपर आया सूरज के अगे आया तो तपदे हुए शरीर को ठंडक मिल गई शांति मिली आनंद मिलिया। हुण मन कहता है बस ये आनंद सदा वास्ते बनया रहे पर बदल बोल के कहता मैं तो पिछलियां नूं भी यही आनंद 2 घड़ियां वास्ते दिता सी तेरे कोल किद्दां सदा रह सकता है। दूसरा सतगुरु महाराज कहते ने होवे ठंड तो ठंड दे विच जेकर किते अग सिक नूं मिल जे अग बलदी हुई मिल जे तो बंदा कहता इहदे विच भी सुख है। बंदा फिर करदा की कहते तीले इकट्ठे किए पास तीलियां का ढेर ला के तो उन्हें अग लाई तो जो अग बली एकदम शरीर में निग आया तो कहता वाह इस तरह का निगी हुण सारा सियाल बनया रहे तो कितना चंगा होवे। पर तीलियां की अग किन्नी क देर तक बनी रह सकती वो छेती ठंडी भी हो जाती। जे बलदी छेती है ना तो ठंडी भी छेती होंगी है। तीसरी सतगुरु महाराज पातशाह जी ने उदाहरण दी है। कहते बंदे ने खेत लै लिया तो लै उच्ची जगह पर लिया। हुण सोचता है कि पानी इत्थे हर वारी चढ़ के आ जाता है नदी दे विच पानी आउंदा है हड़ आउंदा है तो मेरे खेतों तक तो पानी पहुँच जाता मैनू की लगे। पर सतगुरु महाराज पातशाह कहते ये हड़ां दा पानी आउंदा भी छेती नाल है ते चले भी छेती नाल जांदा है। इहदे नाल तेरी खेती कोई पालनी नहीं ये तो थोड़ चिड़ा सोखे। सतगुरु महाराज पातशाह कहन लगे माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल। सतगुरु महाराज कहते ये हड़ दा जाले तो सतगुरु महाराज कहते ने ये थोड़े चिरा दा है जिवें बदल बहुता चिर सुख नहीं दे सकते थोड़े चिर वास्ते छां दिंदे आ। तीले अग बहुता चिर निग नहीं दे सकती थोड़े चिर वास्ते फिर ठंडी हो जाती है। सतगुरु महाराज कहते हड़ दा पानी चढ़दा जरूर है थोड़े चिर वास्ते पानी पहुँचता है पर उच्चियां जगह ते खेत बना के बंदा सोचता ना मेरे वर्गा उच्चा कोई नहीं। सतगुरु महाराज कहते हड़ दा जल ये रहना कोई नहीं इन्हें खत्म हो जाना। सतगुरु महाराज पातशाह वैसे एक संप्रदाय साडे विच कहते वो जो संथਿਆ शुरू कराउंदे ने साडे विच जो संथਿਆ शुरू करते हैं ना असी जपजी साहिब तो आरंभ करते हैं। उन्हां दे विच संथਿਆ जिहड़ी है वो आनंद साहिब तो शुरू कराउंदे आ। आनंद साहिब की बाणी तो संथਿਆ शुरू कराउंदे कहते कि रब दा प्यारा सी बड़ा प्यार उन्होंने बहुत तो अजे तक बाणी चलो नहीं बहुती पढ़ता नहीं सी कहता मन च विचार आया कि बाणी शुद्ध पढ़नी चाहिए है। चले गया उन्होंने कोल संप्रदा दे कोल गया कहता जी मैं संथਿਆ करनी कहते चलो ठीक है अरदास बेनती की संथਿਆ कराउन लगे पहली पंक्ति पढ़ाई आनंद साहब शुरू कराया कि राम कली मुहल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद पिछे बोलिया कि राम कली मुहल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुण अगे वो बोलदा पिया हुण संथਿਆ का तो यही हुंदा ना कि एक जना अगे बोलता पिछला फिर दूजे पासे स्पष्ट करने वास्ते पिछे बोलता कि उच्चारण सही हो जाए। उन्होंने पढ़िया कहन लगे आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। हुण उन्हें पिछे पढ़िया कहता आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। और फिर अगे फिर उन्हें अगली पंक्ति पढ़ी सतगुर दा पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां पर वो उही पंक्ति पढ़ी जाता कहता नहीं आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहता तू अगे क्यों नहीं पढ़ता वो कहता जो आनंद मिल गया तो फिर अगे पढ़न का मतलब ही कोई नहीं रह गया। जिस दिन सतगुरु मिल जाता है उस तो बाद अगे तुरन की लोड़ ही कोई नहीं कहता रह गई। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं शांत सहज रहस मन उपजियो सगले दुख भुलायन हुंदा कदों कहते जो रसना गुण गोपाल नित गायन। बाबा कबीर साहब जी कहते हैं कहते कबीर
मेरी सिमरनी। सिमरनी तो भाव छोटी माला। एक भगत होए ने भगत जल्लन जी। भगत जल्लन जी ने एक कविता लिखी। उन्होंने अस्थान ने एक तो जो असी बार्डर एरिए ते जाने ना खेमकरण वाले पासे, तो उत्थे एक छोटा जिहा पिंड है शीनिया के लागे, उत्थे उन्हों का अस्थान है भगत जल्लन जी का। एक अस्थान उन्हों इत्थे है गोंदवाल के कोल। भगत जल्लन जी बिल्कुल खेतीबाड़ी करने वाले जट सिख होए। कहते उन्होंने जो ना बानी पढ़नी, एक दिन कहते मैं किया कि उन्होंने कविता दे विच लिखिया, कहते मैं किक्कर वड्डिया वड्डा सारा, किक्कर वड्ड के ते उहदे मैं मनके बना ले। कहते लोग माला बनाते ने, जप मालियां बनाते ने, मैं माला बना लिया, वड्डा ही काम कहता मैं किया। कहता मैं माला बना के ते मनके ते मनका ठा मार के देखिया, कहते पर मन टिकिया कोई नहीं। मन कहता मनकियां वाले पासे दौड़ता रहा कि मनके ते मनका चढ़ाई जाना है, पर कहते असल च मन अपनिया खेडां वाले पासे तुर पिया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने ठीक है जी, शुरुआत की लोड़ होंदी। पहलों जेकर असी नाम जपन की गल करते हैं ना, तो नाम जपन की शुरुआत जिस दिन की, जिस दिन माला भी नहीं सी। पहलों सिख की करते सी, पहलों सिख नहीं, जो भी नाम जपन वाले भगतां ने जो शुरू किया, माला का जन्म कित्थों हुंदा, उन्होंने छोटे छोटे रोड़े कंकर शुरू कर ले, इकट्ठे कर ले। हुण रोड़े कंकर इकट्ठे करके वो एक हाथ में कंकर फड़ के ते एक मनका एक रोड़ा दूजे हाथ में फड़ते आ, ते नाल जो भी उन्होंने नाम जपते सी, राम कहना, कबीर कहना, सतनाम कहना, रहीम कहना, जो भी नाम जपना रोड़ियां दे उत्ते शुरू किया। फिर उन्होंने इन्हां रोड़ियां की शक्ल तब्दील की, लकड़ के मनके बनाए, उनके विच धागा परो के फिर कहा कि नहीं रोड़े खिलर जाते, फिर लभने पैंदे आ। उन्होंने माला बना के उनके ते सिमरना शुरू कर दिता। ये शुरुआत वास्ते चंगा है, विखावे मात्र नहीं। जे तो विखावा असी माला फड़ के करते पे ना कि माला दिखाई कि लोग देख के कहन के हाथ दे विच माला फड़ीए। सतगुरु महाराज कहते ने माला तो कर में फिरे, एक विद्वान के बचन ने कहते माला तो कर में फिरे, कर कहते हाथ नूं, जीभ फिरे मुख माहे। जीभ मूँह दे विचों भी बोली जा रहा, कोई राम राम कहता पिया, कोई वैगुरू वैगुरू कहता पिया। सतगुरु महाराज कहते ने मनुआ तो दह दिस फिरे ऐसे सिमरन ना है। मन ते सतगुरु महाराज कहते 10 दिशावां नूं दौड़दा पिया है। सतगुरु कहते इस तरह सिमरन थोड़ी हुंदा है। माला दे नाल जेकर सिमरन करते हैं तो ध्यान वैगुरू दे नाम दे विच होवे। सतगुरु महाराज पातशाह जी की बानी कबीर साहब कहते हैं, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम। कहते मैं छोटा जिहा एक सिमरना बनाया, सिमरनी तो भाव के छोटी माला, तो कहते मेरी रसना वो माला के मनके बन गए। हुण मैं माला के उपर सतनाम जपदा है तो वो वाहिगुरू के नाल मेरी सांझ बनती जाती है। आद जुगादी सगल भगत तां को सुख विश्राम। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने ये नाम जपन का तरीका है, आरंभता है। जे तुसी बानी नूं जदों पढ़दे हो तो एक शब्द असी पढ़ते हैं, 4 खानियां ते 4 बाणियां। खानियां अंडज, जीरज, सेतज ते उत्पुज। बाणियां ने परा, पसंती, मदमा ते बैखरी। परा कहते ने जिस वेले साडी आवाज़, साडी धुनी, साडा श्वास अंदर जाके नाभि दे नाल टकराउंदा है, उत्थों फिर एक धुन पैदा होंदी, उत्थों एक आवाज़ साउंड बनता है। कला अखर कोई नहीं, आवाज़ कोई नहीं, शब्द कोई नहीं, केवल साउंड है, केवल आवाज़ पैदा होंदी है। उन्होंने कहते हैं परा, पहली बानी है परा। उस तो बाद वो जो वापस मूँह वाल नूं आउंदी, क्योंकि श्वास असी अंदर नूं खड़िया, वापस उन्हें परत के जो बाहर आना है, कहते ने परा तो थोड़ा उपर उठती है हिरदे तक, वो धुन वो साउंड जो जाता है उन्होंने कहते ने पसंती। हिरदे दे विच आके कहते पसंती, उस साउंड नूं, उस आवाज़ नूं अखर मिलने शुरू होंदे आ। कोई भी असी भाषा कोई भी जानते हैं, पंजाबी, अंग्रेजी, कोई भी अरबी, फारसी, कोई भी भाषा पढ़ते हैं, अखर कहते हिरदे दे विच आके मिलते। असल दे विच साइंस ने अज बहुत तरक्की की, खास करके पश्चिमी देशों ने, उन्होंने बाहरले पासों बहुत लभ्या, तो साडे इत्थे संत महापुरुष होए ने उन्होंने अंदरले पासों बहुत लभ्या। वो बाहरों पदार्थ नूं लभदे रहे ते ये अंदरों परमात्मा नूं लभदे रहे। वो संसार की खोज करते रहे तो ये राम की खोज करते रहे।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਉਸਤਤ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੱਕਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਾ ਬਸੰਤੀ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਆਇਆ, ਧੁਨ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕੰਠ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰਾ ਬਸੰਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਮਾ। ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਮਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਤ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਖਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੇਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਚੂੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਸੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨੀਏ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਐਲਾਨੀਏ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ। ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ ਪਾਲ ਜਿਤ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਲੀ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾ ਦੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੋਜਨ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਹੇ।
सिख ने उत्थे फिर प्रशादा तैयार किया, नाल जिहड़े साथी सन, नाल जिहड़े काम वाले सन, उन्होंने भी छकाया। किसी ने जाके शिकायत कर दी कि बादशाह सलामत तुहाडे राज दे विच कोई आया तो उन्हें आउंदे प्रशादा पानी चुल्हा अज बाल दिता है, चुक के जेल दे विच पा दिता। हुण राजा अपने महलों दे विच शाम नूं जांदा है, महलों दे विच गया, उत्थे सजंदे आए, साज वजाउण वाले उत्थे पहुंचे, उत्थे बड़े सुरीले जिहड़े सी गवैये आए, जिहड़े गाउण वाले सी, कंठ बड़ा सोहना सी जिन्हां दा। उत्थे कल्ले गवैये नहीं आए, उत्थे नृत्य करने वास्ते नचण वालियां औरतां भी आईयां। राजा उत्थे बैठा है तो उन्होंने बैठ के भी उत्थे आनंद नहीं, हालांकि उनकी मखमली सेज है, गाउण वाले उत्थे ने, सजिंदे उत्थे ने, नचण वालियां इस्त्रियां उत्थे ने, उनके वास्ते सुख के हरेक साधन ने। ते दूसरे पासे जेल की काल कोठरी दे विच कंक्रीट पत्थर दियां फर्श के उत्ते बैठा होया भाई मानसुख उत्थे भी बाणी पढ़दा पिया ते उत्थे भी इनू अंदर दा मन दा सुख है। कहंदे उस वेले जदों उन्होंने क्या देखिया किसी ने कि ये तो इत्थे भी बड़े आनंद दे विच बैठा, उन्हें जाके शिवनाथ नूं दस्सिया। कहन लगे बादशाह जिहड़ा कैदी आपां कल फड़िया ना बंदरगाह तो, कहते वो पता नहीं गाँदा की पिया, मैनूं समझ कोई नहीं आई इस गल की। अज भी कई बार असीं कहने नहीं जी अर्थ नहीं आउंदे तो बाणी ना पढ़ो, कोई लाभ नहीं जी पढ़न का। देखो रोटी असीं खाने ना मूँह दे नाल चबा के खाने, सानूं थोड़ी पता कि अंदर जाके किवें उनका खून बनना, किवें मिज बननी, वो अंदर नूं ताकत जरूर दिंदी है। पानी किवें बनदा है, सानूं ये सूत्र ये साइंस का फार्मूला नहीं आउंदा, ते पानी की अंदर की प्यास नहीं बुझाउंदा। सतगुरु महाराज पातशाह कहते बाणी पढ़ जरूर, जे तो अर्थ पढ़े तो बड़ी चंगी गल, होर ज़्यादा आनंद आएगा। तो जे नहीं पढ़ना आउंदा जिन्नी आउंदी उन्नी क जरूर पढ़िया करे, अंदर सुख जरूर देगी बाणी। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। भावें कोई पढ़िया भावें कोई नहीं पढ़िया, जेड़ा बाणी पढ़दा पिया, जेड़ा सुनदा पिया, उन्होंने अंदर दा आनंद जरूर आएगा। सिपाही जाके कहंदा है, कहंदा बादशाह मैनूं समझ कोई नहीं आई वो की पढ़दा पिया सी, पर कहंदे उनके सुन दे विच जदों उनके मूँह तो सुनदा सी ना आनंद बड़ा आउंदा सी, बड़ा अंदर नूं टिका मिलदा सी। कहंदे वो पत्थरां दे उत्ते बैठा भी होया भी आनंद दे विच, कहंदे बुला के लियाओ। सतगुरु महाराज जी दा सिख भाई मानसुख गए, चेहरा एवें कहंदे चमकदा पिया, पता नहीं किड्डा कोड्डा जिवें बादशाह आया होवे। देख के अखां चुकियां शिवनाथ दियां। उन्हें पूछा किवें आनंद इन्ना टिकाऊ किवें आ, कहंदा देख आ साज वजाउंदे पे आ, नाच करदे पे, हरेक मेरे मन की इच्छा इत्थे पूरी हुंदी, जो मैं करना चाहां वो हो जांदा है, पर मेरे अंदर नूं टिका नहीं मिलता। कहंदे तेरे किवें? कहंदे मैं जिस दिन मैं अपने गुरु नूं मिलिया सी उन्हें एको गल कही सी कि कल्ला नां दा मन सुख है कि अंदर भी मन दे अंदर भी कोई सुख टिकिया है, तो मैं शर्म नहीं कीती उत्थे। देखो सियाने कहते हैं ना कि डॉक्टर के कोल चल जाओ, वकील के कोल चल जाओ, तो पर्दा ना रखो उत्थे गल का। उस तरह जिस दिन तुसी गुरु के कोल आउंदे हो, गुरु के कोल वल छल करके ना हो कि मैं सिख, मैं संत, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं वड्डा हो गया, मैं अमीर, जो कुछ जो सतगुरु महाराज जी की हजूरी में उस तरह बन के आके तो सतगुरु महाराज हम अपराधी सदपूरते। सतगुरु महाराज हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखाए। सतगुरु महाराज जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। सतगुरु महाराज मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जाने अवगुण मेरे। इत्थे तो गुण तेरे नहीं गिने जा सकते, जे मेरे वाले झाती मार के वेखो अवगुण साडे भी नहीं गिने जाने। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने एको कहते गल कही सी, मैं समर्पण हो गया गुरु के अगे, तो मैं क्या सतगुरु महाराज नहीं कोई सुख नहीं अंदर का। सतगुरु महाराज ने हाथ रखिया सी सिर ते, कहा सी अज तो बाद रसना दे नाल नाम जपी, ते रसना नाम जपो तब मथीए। रसना दे नाल कहते जिस दिन जपना शुरू करेगा, जिवें दुध रिड़कीदा है ना, तो दुध मधानी तो बगैर नहीं रिड़किया जा सकता, तो कली मधानी लैके बैठे रहो, जे दुध दही ना हो तां भी नहीं कोई गल बनती। सतगुरु महाराज कहते तेनों रब ने रसना दी आ, अमृत वेला शाम, अमृत वेले उठ के नाम जपना कर। सतगुरु महाराज कहते रसना जपी एक नाम, इहा सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम
ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੀਏ ਤੇਰਾ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਪੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ਪਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। सगल कटाका अंतरजामी सोए अचिंता, जाग अचिंता जहाँ कहाँ प्रभ तू वरतंता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, किवें मिलिया घर ते बाहर सुख? कहो नानक गुर मंत्र दिरड़ाया। सतगुरु महाराज अज कृपा करदे कहंदे रसना गुण गोपाल नित गायन। हे मेरी रसना उस परमात्मा दे गुण गाउना कर, होएगा कि शांत सहज रहस मन उपजियो। आनंद मिलेगा, सहज अवस्था च टिक जाएगा। तो सतगुरु महाराज कहते अंदर ऐ टिकाओ हो जाएगा, मन खिंडेगा नहीं। तो सतगुरु कहते नाम जपन नाल होर की हुंदा? कहते सगले दुख पलायन। पलायन का मतलब नठ जाते ने, जिथे नाम आ जाए उत्थे दुख नहीं टिक सकते। सतगुरु महाराज कहते दुख दौड़ जाते ने, रहाओ विश्राम दे के कहते ने जो मंगे सोई सोई पावे। हुण देखो जदों मन दे विच रब आके टिकदा है ना, उदों दुनियावी मंगां ही मर जाती है। मनसा मार दुविधा सहज समाने। उदों जदों कोई सहज दे विच टिकदा है, उदों केवल रब नूं मंगदा है। ते सतगुरु महाराज कहते जो मंगे सोई सोई पावहे। जो तू मंगीगा वो तेन मिल जाएगा। सेव हर के चरण रसायन। रसायन का अर्थ रसां दा घर। सतगुरु महाराज जी हरेक सुख का भंडार तुसीं हो, हरेक स्वाद का घर तुसीं हो, हरेक रस तुहाडे तो मिलता है। सतगुरु महाराज जन्म मरण दोह हूँ ते छूट है। जन्म ते मरण दो गल्लां है। जिहड़ा जन्मेगा वो मरेगा जरूर, तो जे जमांगे नहीं तो फिर मरना नहीं पएगा। सतगुरु महाराज कहते इक्को आस नहीं बंदा रख सकता कि मैनू जन्म मिल जाए। सतगुरु कहते जे जन्म मंगेगा तो मरण अपने आप मिल जाना है। तो सतगुरु कहते ने जन्म मरण दोह हूँ ते छूट है। जन्म ते मरण दोवां तो तू बच जाएगा। भवजल जगत तरायन। आ भवजल रूप संसार जिहड़ा जगत है, कहते गुरु का शब्द जपेगा तो इनू तू तर जाएगा। खोजत खोजत तत् विचारियो दास गोविंद परायन। लभद्या खोजद्या सतगुरु महाराज कहते सारी धरती खोज के देखी, ये तत् लभ्या कि दास गोविंद परायन। गुरु का दास होवे, गोविंद का भगत होवे, वो सदा रहन वाला है। अविनाशी खेम चाहे जे नानक। अविनाशी मतलब जिहड़े नाश कदी नहीं हुंदा। वो जे खेम दे इत्थे अर्थ ने, जे तू चाहना है कि वो सुख मिल जाए जिन्हें कदी मुकना नहीं, तो सतगुरु महाराज कहते इको काम कर, सदा सिमर नारायण। सदा उस परमात्मा नूं सिमरना करया कर। सतगुरु महाराज कहते सिमरन करन दे नाल सਦੀवी सुख प्राप्त हो जाता है, जीवन सफला हो जाता है। सतगुरु महाराज कृपा रहमत बख्शिश कर। नाम जपना शुरू करिए। थोड़ा ही जपया करो, भावें 5, 7, 10 मिनट ही रोज़ जपना करो। जे बंदा एक दिन दे विच 5 मिनट ही जपना शुरू कर ले, 5 मिनट रोज़ जपना शुरू कर ले, तो एक महीने दे विच 150 मिनट बन जाता। तो जिन्ने साल साडी जिंदगी पता नहीं असीं किन्ना क नाम उन्ने चिर दे विच जप सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जपना शुरू करिए। ज्यों ज्यों रस आएगा, ज्यों ज्यों स्वाद आएगा, त्यों त्यों फिर आपे सिमरन वधन लग पैंदा। फिर जी करदा है जिवें रोटी स्वाद लगे तो बंदा भावें भुख थोड़ी होवे, फिर कहता नहीं आ एक होर फुलका दे दो, स्वाद बड़िया लग्या अज तां। सतगुरु महाराज कहते फिर स्वाद आउण लग पैंदा, फिर होर खाण नूं जी करदा। इसी तरह रसना ना जपोगे अंदर तृप्त होने लग पैंदा है। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत कर। अमृत वेले नूं सांभीए, रसना दे नाल नाम जपीए, ताकि जीवन सफला हो जाए। बोलदियां होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।